तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इट्स राज चैनल। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद, नहीं एक्चुअली 2 महीनों के बाद मैं आया हुआ वीडियो लेके। तो आज का वीडियो होने वाला है ज्ञान के सेगमेंट का एपिसोड नंबर 2 पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी स्कैम के रिलेटेड, तो उस पर अच्छे खासे व्यू आए। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाइए और जाके देखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ભાઈ શું ચાલે જિંદગીમાં? અરે શું કહું, રેઝ્યુમે વેચીને તું નીકળી ગયું પણ જોબ નહીં મળી રહી. વાત કરો ભાઈ, તમને પહેલા કેમ ના મળે? સિક્યુરિટીમાં બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે અને ઓ હિરેન કેવું છે કેટલા દિવસ પછી? અરે બહુ કેવું જોરદાર. ચાલે છે? અરે બસ જોરદાર. તમાર જોબ નું કેવું થયું યાર? અરે જોબ તો મળી ગઈ છે, જોબ તો ચાલે છે મસ્ત એકદમ મજામાં. તારે કેવું છે? અરે મારે એકદમ જલસા વાળી વાત. પણ એક તકલીફ છે યાર, જોબ કરવાના પછી થાકી જવાય છે અને પે એટલો ઓછો મળે છે. અરે હું તો શું કરીએ સિક્યુરિટી ની જોબ કરું છું તો મારો પે સ્ટાર્ટિંગ પે $17 છે. શું વાત કરે? હા રિયલી? હા મારે પણ કરવું પડશે કે એના માટે કરો. ઓહો જયભાઈ ફૂલ ફોર્મ માં. અરે હિરેન ઓ હિરેનભાઈ, હિરેનભાઈ ઓહો કેટલા દિવસ પછી. કેવું છે ભાઈ? કેવું ભાઈ? બસ મજામાં મજામાં. અરે હવે ઉનાળાનું વેકેશન આવી રહ્યું છે તો તમારા બધાના જોબ કરવાનો શું સીન છે? અરે હા, એ વેકેશન તો આવી રહ્યું છે. વિચાર તો છે કરવાનો, પણ શું કરીએ, મારા પાસે ઓલરેડી એક જોબ છે જે એટલી બધી હેક્ટિક છે, વર્કલોડ સાથે છે. તો મને નહીં લાગતું કે હું બીજી જોબ કરી શકીશ, કેમ કે 8 કલાકની શિફ્ટમાં એટલું થાકી જવાય છે. સાંજે આવીને ખાઈને સીધું સૂઈ જવું પડે છે મારે. અરે હું સિક્યોરિટી ની જોબ કરું છું શું અને વાત મને કરે? 8 કલાકની શિફ્ટ મળે છે તો એનામાં મેં બીજી જોબ પણ મેનેજ કરી શકું છું બીકોઝ જો વર્કલોડ છે બહુ ઓછો છે. સાચે? હા હા જોવું, કેમ કે આ બાબતમાં મને વધારે કંઈ ખબર નથી, પણ આપણે એક માણસને પૂછી શકીએ. એને મે બી ખબર હશે કે આ બધું વસ્તુ શું ચાલી રહી છે અને સિક્યુરિટીનું શું છે. તો આપણે બોલાવો એને. ઉભા રહો. રાજ, હે રાજ, હા મિત્ર. એ અહીંયા આવજો ને. કેમ મિત્રો બોલો, કેવું ચાલે છે? બસ મજા. કે મજા આવે થંડર બે જોરદાર કેનેડામાં? જોરદાર. શું ભાઈ આપણે તો ઘરના જ છે યાર. સ્મેલ સાફ કરવાનો હવે આખો દિવસ. આપણે આ જ કરવાનું છે. બોલો શું હતું? અરે આ લોકો કહે છે કે સિક્યુરિટી લાયસન્સ તો બહુ ફાયદા છે અહીંયા. મને તો આજ સુધી ખબર નથી, પણ મેં કહું આ તને પૂછી જોઈએ, તને વધારે એક્સપિરિયન્સ હશે તો. જો ફાયદા તો છે ભાઈ, બરોબર કે તમને આવસ વધારે મળે અને તમારે શિફ્ટ લાંબી બધી કરી, પણ સેફટી ઇસ્યુ બી છે અને એ ડિપેન્ડ કરે આ સિટી ઉપર. કેમ કે થંડર બે ક્રાઇમ કેપિટલ આપણે બધાને ખબર છે, બરોબર, સિટી હોલનું સીન. તો થોડો સેફટી ઇસ્યુ હોય, બાકી સિક્યુરિટી જોબ તો બેસ્ટ જોબ હોય. એમાં કંઈ પે ને એવું પણ વધારે મળે પે છે? બી એવું વધારે કંઈ? હોય છે એનું. તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. આમાં બહુ બધી ડિટેલ્સ આપી છે સિક્યોરિટીની, તો એન્ડ સુધી જોજો. લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ઇટ્સ રાજને. છેલ્લા સુધી જોજો, બરોબર છે. चलो મળીએ તાર. આવજો. तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये वीडियो होने वाला है सिक्योरिटी के जॉब के रिलेटेड। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो ये नहीं है कि आप कैसे अपना लाइसेंस निकाल सकते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस का। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो और मेरे से अच्छे बोलने वाले और नॉलेज देने वाले वीडियोस हैं, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो होने वाला है कि क्या मुझे सिक्योरिटी लाइसेंस लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप अपने $350 से $400 और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इज़ इट वर्थ इट और नॉट। बट मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता। तो हम बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स की बात करेंगे, फिर हम ओपिनियन देंगे और एट द एंड आपको चूज़ करना है कि फेयर इनफ बेनिफिट्स है कि मैं लाइसेंस लूँ और फेयर इनफ ड्रॉबैक्स है कि मैं लाइसेंस ना लूँ। तो लास्ट तक बने रहिए और आपको अपने आंसर का जवाब मिल जाएगा। तो ये जो भी मैं बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया सिक्योरिटी में जॉब करते हुए, और ये जो भी है वो ओंटारियो में है, तो आपके प्रोविंस में अलग रूल हो सकता है। तो पहली बात कि अभी तो जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है। जॉब ढूंढना बहुत ही हार्ड हो गया है क्योंकि सारे बंदे फुल टाइम हो गए। इवन जो स्कूल में है, तो जो नए बंदे आ रहे हैं उनको कोई जॉब ही नहीं दे रहा क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं है। पर सिक्योरिटी में बात अलग है। तो हाँ, जॉब इजीली मिल जाती है अगर आप कंपेयर करो अदर जॉब से। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर सामने से करेगी, आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, और रेफरेंस भी डाल ही सकते हो। कोई ना कोई अपना उस कंपनी में काम तो करता ही होगा। तो अगली बात करें तो जॉब तो मिल गई, पर उसके बाद आवर्स का क्या? तो देखो, सिक्योरिटी जॉब सीज़न पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हो, कैशियर या फिर स्टॉकिंग एसोसिएट की तरह, तो क्रिसमस के टाइम पे आपको फुल आवर्स मिलेंगे, और उसके बाद जैसे विंटर स्टार्ट होगी तो वो आपके आवर्स कट कर देंगे।
तो सिक्योरिटी जॉब में ये कम दिखने को मिलता है कि सिक्योरिटी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होती है, तो उसमें सीजन का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, तो आपको आवर्स तो मिल ही जाता है। कि सिक्योरिटी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होती है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि उसको प्रॉपर्टी प्रिवेंट करनी है या फिर मर्चेंडाइज को बचाना है। तो उसमें कस्टमर के साथ कुछ एज सच रिलेशन नहीं होता। अगर कम कस्टमर होते फिर भी आवर्स उतने मिलते हैं, और ज़्यादा कस्टमर होते तो मर्चेंडाइज पे हार्म होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गार्ड्स रखते हैं, तो आवर्स मिल ही जाते हैं इनफ। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, वो है पे। तो हम ऐसे कंपेयर करें कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कितना पे मिलता था और उस टाइम पे मिनिमम कितना पे था। तो मैं ये बात कर रहा हूँ फरवरी 2022। तो जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब मेरा पे था $16 पर आवर, और तब मिनिमम वेज था $14.75 to $15। जब मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की तो तब मेरा पे था $17.65, और तब मिनिमम वेज हुआ था $50 पर आवर। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी मिनिमम वेज है $16.55 और समथिंग। तो अभी मेरा पे है 18.5, मतलब $18.5 पर आवर। तो इससे ज़्यादा भी पे हो सकता है। मेरा एक दोस्त है जो एक सिक्योरिटी जॉब में काम करता है, उसका पे है $23 पर आवर्स। तो मोस्टली सिक्योरिटी जॉब का पे मिनिमम से ज़्यादा ही होता है, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन और किस कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो आप लोग सोच रहे होगे भाई तू इतनी जॉब कर रहा है, कोई कंपनी का भी नाम ले ले। तो अगर मैं थंडरबे की बात करूं तो थंडरबे में मैंने जो जॉब शुरू की थी वो थी RLP, और कंपनी है REP, एलाइड, गार्डावर्ल्ड, नॉर्थ वेस्ट, एपेक्स। तो इसमें कुछ कंपनियां लाइक ऑल ओवर ऑन्टेरियो है जिनका पे ज़्यादा होता है, और कुछ। तो मैं क्यों सबको सिक्योरिटी जॉब सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली अगर उनका ब्रेक चल रहा है विंटर या समर, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेन गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और फीस पे करना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का। अगर आप 2 जॉब कर रहे हो और दोनों ही जॉब लोड वाली है, मतलब वर्क लोड वाली है, तो आप ज़्यादा आवर्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि सिक्योरिटी इतनी हार्ड जॉब नहीं होती, फिजिकली मेंटली होती है, पर उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फिजिकली हम अगर बात करें तो उसमें मोस्टली होता है कि आपको एरिया पे अगर आपको कोई बिल्डिंग दे दी है तो उसमें आपको पेट्रोलिंग करना है, आपको अपनी लॉग बुक चेक करनी है, और अगर आपको देखना है कि कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो गया तो उसको हैंडल करना है या फिर पुलिस को बुलाना है। और दूसरी बात कि सिक्योरिटी जॉब में बहुत लंबी शिफ्टें मिल जाती है, मतलब 12 घंटे की, 8 घंटे की। तो मैंने जो सबसे लंबी शिफ्ट की है वो थी कि शाम के 5 बजे शुरू की थी और सुबह के 6 बजे तक, मतलब 13 घंटे की शिफ्ट थी। तो उसमें 1 घंटा बैठना था, पर उस पूरी शिफ्ट में ही मैं बैठा रहा था, तो उसमें उस 1 घंटे का भी मुझे पे मिलता है, तो मुझे 13 घंटे का पे मिला था। तो अगर आप मान लो पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो अगर आप मान लो कि 13 घंटे तो नहीं कि 10 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो, तो अगर आप 3 दिन करोगे फिर भी आपके 30 घंटे हो जाएंगे। तो अगर सिक्योरिटी की पोजीशंस की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी पोजीशन है, पर मैंने 2 ही देखी है। एक होती है यूनिफॉर्म्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म गार्ड। तो पहले हम नॉन यूनिफॉर्म गार्ड में बात करते हैं, क्योंकि मैं उसमें अभी जॉब करता हूँ। तो उसमें आ जाते हैं लॉस प्रिवेंशन, असेट प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेटर्स। तो लॉस प्रिवेंशन का मेन काम ऐसे ही होता है कि अंडर कवर, मतलब आपको कस्टमर बन के स्टोर में घूमना है, और अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको जाके पोलाइटली बोलना है कि भाई मुझे वापस दे दे। अगर नहीं दे रहा तो पुलिस को कॉल करना है, ऐसा लीगली होता है। और आपको पता है चोर थोड़ी ऐसी चीज़ें दे देता है, भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उनका काम यही होता है कि मर्चेंडाइज प्रिवेंट करना होता है और कस्टमर बन के रहना होता है, और मतलब मर्चेंडाइज प्रिवेंट करना इसीलिए उनको कहते हैं लॉस प्रिवेंशन। और उसके बाद आते हैं असेट प्रोटेक्शन। तो असेट प्रोटेक्शन का काम होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो थेफ्ट्स होते हैं, मतलब कई बार ऐसा नहीं होता कि कस्टमर ही चोर होते, एसोसिएट भी चोर होते, बहुत होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। और फिर आते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर लॉस प्रिवेंशन और असेट प्रोटेक्शन के ऊपर की पोजीशन होती है। तो अगर वो फाइनल फैसला किसको लेना है वो इसके हाथ में होता है। तो दूसरी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म गार्ड की। तो इसमें मुझे 2 ही कैटेगरीज के बारे में ज़्यादा पता है। एक होता है जो नॉर्मल गार्ड्स, जिनको यूनिफॉर्म दे दिया होता है और एक स्टोर की लोकेशन दे दी होती है, वहाँ जाके उनको पेट्रोलिंग करनी है। तो दूसरी कैटेगरी होती है मोबाइल की। तो मोबाइल मतलब सेलफोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब कि जो रात में
जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है उनको अगर कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम आ गई तो वो मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। वो सुपरवाइज़र होता है रात का, दिन में भी होते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको गाड़ी दे दी होती है और उनको अलग अलग प्रेमिसेस में जाके चेक करना होता है कि सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इवन वो चेक भी करते हैं कि जो नॉर्मल गार्ड है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब आपको अगर सर्कल के पे एज ए नॉर्मल गार्ड तक पर रखा है और अगर आप वहाँ जाके सो रहे हो तो इट इज़ नॉट फेयर। तो वो मोबाइल का एक और वो भी काम होता है, तो उनका पे ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो सुपरवाइज़र लेवल पे आते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत और भी पोजीशंस है, पर बेसिकली अगर आप नए नए सिक्योरिटी गार्ड की तरह लगते हो तो आपको इन सब पोजीशन में से ही जॉब मिलती है। और मोबाइल में एक और बात कर दूँ कि उसमें जी चाहिए होता है या फिर G2 चलता है, कुछ कंपनी एक्सेप्ट करती है। ओके, तो जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ गया है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट का। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सेफ्टी इशू। तो मोस्टली अगर कोई पूछता है कि भाई सेफ सिक्योरिटी जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि भाई सेफ़ नहीं है, विच इज़ नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट ये सच भी नहीं है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास सिक्योरिटी लाइसेंस तो है पर वो जॉब कर नहीं रहे या फिर करके उन्हें छोड़ दी। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मेन हमारा काम होता है कि कोई चोर अगर चोरी कर रहा है तो उसको जाके रोकना है। तो या तो आप पोलाइटली पूछ सकते हो कि भाई ये चोरी कर रहा है तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, तो मुझे वापस दे दे और स्टोर के बाहर निकल जा। और अगर वो मना कर रहे तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो अगर लॉजिकली सोचें हम तो मोस्ट ऑफ द चोर पुलिस का नाम लेते ही वापस कर देते हैं चीज़ें या फिर चले जाते हैं। पर इसमें बहुत इंसिडेंट होते हैं कि जिसमें वो पुलिस से भी डरते नहीं है, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चोर आपको मार तो सकता नहीं क्योंकि उनकी भी पुलिस से फटती है, तो वो क्या करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने का ट्राई करेंगे और बहुत ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आप सहन नहीं कर सकते। तो आपको वो सब चीज़ें अपने दिमाग पे लेनी नहीं है, वरना ये जॉब बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएंगी। और वो हो जाएगी पहले स्टार्टिंग में। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये सब बोल रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में ले लेंगे और आपको लगेगा भाई ये तो जॉब चील है, तो ऐसी है भी नहीं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा भाई क्या जॉब है, ये लोग तो कुछ भी बोल के जा रहे हैं हमें, तो वो दिमाग पे लेने की नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता और है नहीं, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाने का ट्राई करते हैं और वो अच्छी बात नहीं है कि फिजिकल होना। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि कुछ लोग पुलिस से भी डरते नहीं है, तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है भाई, पीछे हो जाना है और अपने मैनेजर को कहने कि भाई सिचुएशन हैंडल कर, मैं आपके बैकअप की तरह हूँ। तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये तो बात हो गया कि अगर मैं कुछ मॉल में काम कर रहा हूँ तो मैं अपने मैनेजर को बुला सकता हूँ, पर अगर मैं कोई ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मैं अकेला हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे हटना है, उसको बोलना है भाई जो ले जाना है वो ले जा, और उसके जाने के बाद पुलिस को कॉल करना है, उसकी सारा डिस्क्रिप्शन देना है, वो कहाँ गया, कैसा दिखता था, तो पुलिस पकड़ लेगी और आपको अपडेट करेगी कि क्या अभी चल रहा है। और देखिए, तो हमारे सुपरवाइज़र को या फिर वो मॉल या स्टोर के ओनर को पता है कि क्या सिचुएशन है, कि ये सिक्योरिटी गार्ड ट्राई करेगा अपने बेस्ट, पर अगर उसके पास कोई वेपन होगा तो उसको पीछे ही होने को कहेगा। वो नहीं कहेगा भाई जा तू अप्रोच कर और हीरो बन, क्योंकि उसको भी पता है कि 100, 500 या $1000 तक भी वो अपनी जान नहीं देने वाले। उसमें ऐसा होता है कि जो बेस लेवल के एसोसिएट होते हैं उनको ये सब बातें पता नहीं होती, तो उनके सामने से अगर आप किसी चोर को जाने दोगे तो उनको तो ये लगेगा भाई ये तो डर गया, पर आपको वो सब चीज़ें नहीं लेनी है दिमाग में, क्योंकि उनको पता नहीं कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो मेरे को बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब कि अगर कोई चोर आ रहा है और उसको बियर या मीट चाहिए तो भाई तू वो लेके चेकआउट पे जा, तू वो ले जाके फैशन में क्यों जा रहा है, तो वो समझ जाता है कि भाई वो चोरी करने वाला है। तो दूसरा और लास्ट टॉपिक नेगेटिव के बारे में, तो वो है कि आपको हीरो नहीं बनना है, मतलब आपको शक्तिमान नहीं बनना है, आपको गंगाधर बनना है। पर शक्तिमान ही गंगाधर छोड़ो, ठीक है। और स्पेशली जब ये बात आती है लड़कियाँ या फिर माइनर्स को लेके, क्योंकि पुलिस खुद माइनर्स के साथ कुछ नहीं कर सकती अनटिल दे गो बियॉन्ड द लिमिट्स। तो इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो तो कंक्लूज़न में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई मुझसे पूछता है कि सिक्योरिटी जॉब करनी चाहिए या ना, तो मैं कहता हूँ कि उसमें अच्छे आवर्स मिल जाते हैं, अच्छा पे मिल जाता है, और मैंने ऊपर जो भी चीज़ें बताई वो अगर आप समझ गए तो आपके लिए सिक्योरिटी जॉब बहुत आसान हो सकती है। और इतने टाइम में मैंने जो भी सिक्योरिटी जॉब्स की है उसमें ना ही मुझे कोई तकलीफ आई है और ना ही किसी ने मुझे मारा है या मेरे को कोई फिजिकल होना पड़ा। हाँ, पर इसमें ऐसा है कि मैं मेरी मम्मी से ज़्यादा पुलिस को ज़्यादा कॉल करता हूँ। तो इसी के साथ हम हमारे ज्ञान के सेगमेंट का एपिसोड नंबर 2 रैपअप करते हैं।
आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट. Until then, stay tuned. See you soon with Raj. Bye bye. ચાલતા ચાલતા ચાલ નહીં બરોબર. આ કે કેવું ચાલે જિંદગીમાં જાય ભાઈ? તો તારે કે આમ પેલા રેઝ્યુમે બહુ વેચ્યા પણ મને તો હારી નોકરી મળતી જ નહીં બરોબર. તો હું અહીંયાથી આવે સ્ટાર્ટ. શું જયભાઈ કેવું ચાલે જિંદગીમાં? રેઝ્યુમે અરે આમ મેં તમને પણ પહેલા ના મળે સિક્યોરિટી લાયસન્સ નહીં લો બહુ જો બરોબર. અને આપણા મિત્રોએ જે સસ્તી એક્ટિંગ કરી એને એપ્રિશિએટ કરજો. કોમેન્ટ ભરી કાઢો આનાથી બરોબર છે.